let's continue with the chapter called structure of atom, right? In the last class, what we have done? In last class, we have saw that Rutherford experiment, right? Alpha particle, how it will bombard, what are the effects, right? We have saw the Rutherford experiment, that is alpha scattering. Using the alpha particles, how the Rutherford is done that experiment. What are the observations, right? We have saw that. What he took one source, right? Through that what उन्होंने क्या किया था, एक सोर्स लिया था, right? They passed alpha particles. They passed alpha particles from the source. Source means the alpha particles is nothing but radioactive, right? They are very energetic one. They are passing that source, that radiation, that alpha particles through lead plate, through a lead plate to fall, to hit on what? Foil, gold foil, right? To hit on a gold foil which is made at the center, right? When it will hit on the foil, what will happen? उस foil पे जब hit करेगा तो क्या हो रहा है? 3 observation मिल रहे हैं, right? We are getting 3 observations. क्या क्या है वो? Right? Let's see those things once again. I have explained already. Still, you can see the first one is most of the alpha particle passed through the gold foil undeflected, है ना? Most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. बहुत सारे particles क्या हो रहे हैं? Directly pass हो रहे हैं. क्यों हो रहा है ऐसा? What is the reason behind this? That is, there is empty space. थोड़ा empty space है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? डायरेक्टली पास हो रहा है, उसको हिट नहीं कर पा रहा, राइट? डायरेक्टली इट इज पासिंग थ्रू. इन द एटम, which atom you are using? Gold, right? Gold foil you are using. In that some empty space is there. हर एक एटम में थोड़ी बहुत empty space होता है, राइट? तो जहाँ where the empty space is there na, from there the alpha particles are passing through that without deflection. कोई deflection नहीं दे रहा है. तो वो क्या हुआ? पहला observation. What is the second one? A small angle fraction of alpha particle was deflected by small angle. क्या हुआ हो रहा है? Small angle बना रहे हैं. क्या? For example, here it is, right? ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड घूम रहे, राइट? इफ यू आर पासिंग लाइक दिस, ऐसा पास कर रहे आप, तो ये क्या होगा? ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, लाइक दिस, ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा. इफ अल्फा पार्टिकल इज पासिंग नियरर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नियर से भी पास आउट हुआ, नियर भी गया, तो क्या आ रहा है? रिपल हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है. क्यों आ रहा है? व्हाई इट इज कमिंग? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो a positively charged particle. अल्फा पार्टिकल भी क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज है, एनर्जेटिक पार्टिकल. और न्यूक्लियस में क्या है? व्हाट इज देयर इन द न्यूक्लियस? प्रोटॉन, which are positively charged. Protons are also positively charged so that they will repel each other. जब like charges क्या होंगे? ऑलवेज रिपेल होंगे. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each other, राइट? तो उसी की तरह अल्फा पार्टिकल जब नियरर टू न्यूक्लियस जाएंगे तो क्या होगा? स्मॉल एंगल करके डिफ्लेक्शन होगा, राइट? बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स. इन न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रोटॉन which has a proton which is positively charged, and alpha particle is also positively charged.
right? This is the second observation, right? Why it is happening means because of positive charge, repulsion force. Third one, what is third one? A very few alpha particle bounced back, that is deflected by nearly 180 degree. देखो जब पास होगा अल्फा पार्टिकल नियरर से ही तो उतना डिफ्लेक्ट हो रहा है, उतना रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो नियरर से ही डिफ्लेक्शन हो रहा है। इफ यू डायरेक्टली उसी न्यूक्लियस पे जाएगा जब ये पार्टिकल, तो ये क्या होगा, उतना ही प्रेशर के साथ बाउंस बैक होगा 180 डिग्री के अलाउंग, राइट? वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हिट अल्फा पार्टिकल हिट नहीं कर पा रहा है, कमिंग बैक एज, राइट? वो जितना जितने एनर्जी के साथ जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, क्योंकि इमेंसिव रिपल्शन फोर्स उनके बीच में क्या है, व्हाट इज देयर इन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, इन बिटवीन देम रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स, राइट? क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, बोथ आर लाइक चार्जेस, राइट? दिस इज अबाउट व्हाट, these three things and their reasons I have told, right? In your NCERT also it is given, still you want to take, you can take. Before that I'll just explain the postulates of that, what he conclude actually from this experiment. रुदरफोर्ड ने क्या किया है from this experiment? Let's see that. Okay, postulates क्या है? फर्स्ट वाला, the positive charge and mass of the atom densely concentrated in extremely small region, this is very small region, is nucleus. क्या बोला गया है, जो भी ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट? वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोस्ट कहाँ पे है, मास, उसका जो मास है सेंटर ऑफ द एटम, राइट? एटम की सेंटर पॉइंट पे डेंस हुआ है, वही कंसंट्रेटेड इन डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, वो भी बहुत छोटे रीजन में, आपको पता है, राइट? दिस इज योर लाइक दिस द, राइट? सो दिस इज व्हाट योर न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में बहुत डेंसिटी भी है, इवन concentrated with the proton and neutron, right? वही बोला है, the positive charge and most of the atoms densely concentrated in extremely small region. This very small region is called nucleus. वो जो small region है उसी को हम क्या कहते हैं, nucleus, right? Because in the nucleus there is a presence of प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रेजेंस है, किसने फाइंड आउट किया था न्यूट्रॉन्स के बारे में? जेम्स चैडविक, राइट? बेरिलियम को बम्बार्ड करके किसके साथ, फॉइल के साथ, सॉरी न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करके उन्होंने क्या निकाला था, या देयर इज सम mass, right, which doesn't have any charge. He got that there is a presence of some mass is there, some particles are there which have a little more mass compared to the positive protons, so that is nothing but your neutron, right? उन्होंने बोला था, तो इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ड्यू टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। वी कैन कॉल देम एज न्यूक्लियॉन्स ऑल्सो। पॉस्टुलेट क्या बता रहा है, एटम की जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो डेंसली कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एट दी सेंटर। उस सेंटर एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। वी कॉल दैट एज अ न्यूक्लियस। दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट, राइट? नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन
that move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbit. क्या बोला गया है? ये तो न्यूक्लियस के बारे में बोल दिया उसने, राइट। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है, द न्यूक्लियस है, वो किससे सराउंडेड है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? नेगेटिवली चार्ज है वो, राइट, नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होंगे? वो घूमेंगे इससे न्यूक्लियस के अराउंड, they were revolving around the nucleus, right, they are revolving around the nucleus with a very high speed in a circular path. circular path में ऐसे यहाँ पे रिवॉल्व होते रहते, जस्ट लाइक सन। जैसे सन के पीछे सारे प्लैनेट्स सन किस अराउंड घूमते हैं ना, सोलर सिस्टम, राइट, जो सन के साथ ऐसा रिजम, उसी तरह से जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी के तरह इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर डालता रहता, राइट। व्हाट इज दैट पाथ? जिस पाथ पे वो मूव होता है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज ऑर्बिट। दैट पाथ on which path the electron will travel, revolve around the nucleus, that is your nothing but orbit. This is the second point, right? That was the second point. And the third point is electrons and the nucleus is held together by electrostatic force of attraction. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, that electrons and that nucleus, इन दोनों के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कभी भी समझ लीजिए, जब भी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यूजुअली द अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्जेस have that only electrostatic force of attraction, right। ये तीनों आपके postulate Rutherford, right, Rutherford postulates करते हैं, okay। and this is the positive charge and the most of the mass of the atom densely concentrated in extremely small region. This very small region is called nucleus, right। एक तो न्यूक्लियस के बारे में पता चला हमें, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, राइट। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जस्ट टेक इट ऑन दिस, ओके। Okay, well, we have solved the Rutherford experiment, right? So now let's see, before going to the next model, let's see the main topic, that is atomic number and mass number, right? Let's see the atomic number and mass number. Atomic number, the positive charge of the nucleus is due to what? किसकी वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ऐसा बोलते हैं हम? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, इन द न्यूक्लियस देयर इज अ प्रोटॉन, सॉरी, प्रोटॉन्स, बिकॉज ऑफ दैट द चार्ज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। एंड जो आपके प्रोटॉन में न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स, that is equal and opposite to the electrons which are revolving around the nucleus, right। and जो proton and neutron collectively at one side होने की वजह से उनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियस में रहने की वजह से, in the nucleus there is a proton and the neutron, we can
call them as a nucleons also, right? Then what is atomic number? Atomic number का meaning क्या है, right? Atomic number is nothing but number of protons in the atom, or that is equal to number of electrons in the atom. Let's write that one. The atomic number, shortly I will write like this, number is denoted by Z. The atomic number is denoted by Z, which is equal to number of protons present in the atom, and that is equal to number of electron present in the atom, राइट? एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाएगा, और Z का मीनिंग क्या हो सकता है? दैट Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनको किस से डिनोट करेंगे हम? Z. एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम. इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को भी हम Z को ही डिनोट करते हैं. मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट इन एटम जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज, मीन्स जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, राइट? बोथ आर इक्वल, सो दैट वी आर डिनोटिंग दैट बाय Z, राइट? नाउ मास नंबर. मास नंबर कैसा है? व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर ऑफ neutrons plus number of protons, right, in the nucleus. Mass of the electron is denoted by that. Plus number of neutron, and which is denoted by A, right? Always remember, atomic number is denoted by Z and mass number is denoted by A. In some books it is given reverse also, don't worry. The important thing is what? Atomic number always equal to number of electron present in the atom, number of protons present in the atom, right? And always mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. ये याद रखना है, क्योंकि डिनोट नोटेशंस कभी एक बुक्स में रिवर्स भी दिया गया है, राइट? इन एनसीईआरटी इट इज गिवन लाइक दिस ओनली, बट स्टिल, राइट? सो दिस इज द थिंग. Just write it on this. I'll take the examples. राइट? लिख लिया. अब देखो, हम एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से. वी आर डिनोटिंग एक्स बाय एलिमेंट. कौन सा भी एलिमेंट होने दो, हाइड्रोजन, कार्बन, एनीवन, राइट? एंड द सुपरस्क्रिप्ट is your atomic mass. Atomic mass. And the subscript is your atomic number. This is denoted by Z
दिस इज डिनोटेड बाय व्हाट? A, atomic number. Sorry, reverse I have written na. This is your Z, right? So ये सुपरस्क्रिप्ट क्या होगा? मास नंबर होगा. सबस्क्रिप्ट क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा. लेट्स टेक सम एग्जांपल, राइट? कैसे होंगे एग्जांपल? फॉर एग्जांपल that is carbon, right? Atomic number क्या है? 6 है. Mass number है 12. What is 12? What is 6? 12 is Z is equal to 6 and A is equal to 12, right? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऐसा पूछते problems. क्या problems? In CD also they will ask like this, that tell me the how many number of electrons were there, how many number of protons were there, how many number of neutrons are there in this atom. उसे find out करने के लिए क्या करना है? Let's see that, right? Carbon is there, right? और ये क्या है? Z atomic number है, A mass number. Where we know that what is that? Atomic number is equal to number of electron present in the atom or equal to number of protons present in the atom, right? Protons को equal होता है और electrons को भी equal होता है. तो फिर इसका कार्बन के अंदर कार्बन C12 के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है? लेट्स कैलकुलेट. नंबर ऑफ electrons कितना? number of protons, number of neutrons. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, क्योंकि Z is equal to 6, राइट? एटॉमिक नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते, जितने प्रोटॉन्स होते उतना एटॉमिक नंबर, राइट? तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? समझ में आया? अभी न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो भी तो चाहिए हमें, राइट? वे अभी हमने लिखा था दैट मास, एटॉमिक मास और मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे, देखो, A इज इक्वल टू P प्लस N, है ना? A का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द A वैल्यू? 12. लिख लिया हमने. प्रोटॉन्स कितने हैं हमें पता है, सो जस्ट राइट इट डाउन 6 प्लस N. नाउ यू कैन फाइंड आउट द N. N इक्वल टू 12 माइनस 6, तो कितना होगा? 6. तो न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो 6, राइट? 1 हमें पता चला. How many electrons were there? How many protons were there? How many neutrons were there? Right? We just write it on this. We'll take the next one also. मैं रिमूव कर रही हूँ. ठीक है, लेट्स टेक ऑक्सीजन. जस्ट ट्राई इट. 8, 17. चलो ट्राई करो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने कितने हैं? जस्ट ट्राई टर्म्स. पहले इसका फाइंड आउट करेंगे. चलो लेट्स फाइंड आउट दिस. चेक करो कोई किसका किसका राइट होता है, किसका किसका रॉन्ग होता है, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फर्स्ट हमें क्या करना है? पहले कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा मास नंबर है, वो निकाल के रखना है. व्हाट इज दैट हियर?
Z is 8. Right? What is A? 17. A 17 है, right? क्योंकि मास नंबर, एटॉमिक नंबर 8 Z, और एटॉमिक नंबर किसको इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के। तो कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8, राइट? सेम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसमें से ये माइनस करेंगे, वी आर डिडक्टिंग फ्रॉम दिस, राइट? मास नंबर 17 है, प्रोटॉन्स का नंबर 8 है, तो माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? 17 माइनस 8 9, right? So number of neutrons. ऐसे calculate. Let's calculate that also, right? Number of electrons, number of protons, number of neutrons. Right? कितने हैं electrons यहाँ पे? What is that here? 35. What is A? 80. Right? So कितना हुआ electrons? 35 हुए ना, and protons 35, दोनों सेम होंगे, राइट? एक का पता चला तो दूसरा भी अपने आप लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन्स का कितना होगा? माइनस करो 35 को 80 में, व्हाट इज देयर, राइट? कितना होगा? 45, राइट? लाइक दिस you just find out the how many number of electrons are there, how many number of protons are there, how many number of neutrons, right? They will last like this. Take it out this. Okay, took now. So we will continue this in the next class. In next class we'll see the isotopes, isobars, right? Isotopes and all those things.